کہتے ہیں قدرت کی آزمائشیں اکثر ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جنہیں وہ بلند مقام پر دیکھنا چاہتی ہے۔ کبھی سب کچھ عطا کر کے چھین لیتی ہے اور کبھی اندھیروں میں چھپا کر ایسے جگمگاتے ہوئے نکالتی ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی صدیوں پرانی سلطنت کی ہے جہاں بادشاہ سلطان اور ملکہ سکینہ سالوں سے ایک اولاد کے لیے دعاگو تھے۔ محل کے کمرے دعاؤں کی گواہی دیا کرتے اور راتیں آنکھوں میں نمی لیے گزرتی تھیں۔ اور پھر ایک دن ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ ملکہ کی کوکھ سے ایک بیٹی نے جنم لیا۔ جس دن وہ بچی پیدا ہوئی آسمان پر عجیب سی چمک دکھائی دی، جیسے ستارے بھی خوشی میں مسکرا اٹھے ہوں۔ بادشاہ نے اس کا نام نور رکھا کیونکہ واقعی وہ ان کی زندگی کی روشنی بن کر آئی تھی۔ نور کا چہرہ ایسا تھا جیسے چاند کی چمک اور صبح کی روشنی ایک ساتھ اتر آئی ہو۔ محل میں جشن منایا گیا، شاہی توپیں چلی، ہر بستی میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، قلعے کے میناروں پر چراغ روشن کیے گئے۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، یہ بچی سلطنت کا مستقبل ہے، ایک نئی صبح کی نوید۔ مگر جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں حسد بھی پنپتا ہے۔ جہاں چراغ جلتے ہیں وہاں سائے بھی لمبے ہو جاتے ہیں۔ اسی محل میں برسوں سے موجود ایک پرانا وزیر کریم اس روشنی سے جلنے لگا۔ کریم کبھی بادشاہ کے بہت قریب تھا، مگر وقت کے ساتھ وہ صرف ایک چالاک سازشی بن کر رہ گیا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ ایک دن وہی تاج پہنے اور محل کے دربار میں اس کا حکم چلے، لیکن نور کی پیدائش نے اس کے خوابوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب نہ صرف بادشاہ زندہ ہے بلکہ اس کے بعد بھی سلطنت ایک وارث کو مل گئی ہے، ایک ایسی وارث جسے عوام بھی دل سے قبول کر چکے تھے۔ حسد نے کریم کی آنکھوں سے بصیرت چھین لی۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک نور زندہ ہے اس کے ارادے کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ایک رات جب سب شہزادی کی دوسری سالگرہ کے جشن کی خوشیوں میں مصروف تھے، کریم نے چپکے سے اپنا منصوبہ مکمل کر لیا۔ اس نے محل کے اندر موجود اپنے وفادار نوکر کو حکم دیا، نور کو اغوا کر لو۔ اور اسی رات شہزادی نور کو چپکے سے محل کے پچھلے دروازے سے نکال لیا گیا۔ چاندنی رات تھی اور ہواؤں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ نوکر ننھی نور کو ایک گھنے اور سنسان جنگل کے بیچ لے گیا۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ شہزادی کو مار دیا جائے، مگر جب اس نے شہزادی کو دیکھا تو ہمت نہ کر سکا، اور شہزادی کو جہاں نہ روشنی تھی، نہ آبادی، نہ کوئی راستہ، وہاں ایک سوکھی جھاڑی کے سائے میں اس نے نور کو چھوڑ دیا۔ معصوم بچی رو رہی تھی، اس کی آواز رات کے سناٹے میں گونج رہی تھی، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ کریم مطمئن تھا، اسے لگا اب وہ آزاد ہے۔ تخت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہٹا دی گئی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس بچی کو وہ جنگل کی تنہائیوں میں دفن کرنے چلا تھا، وہی بچی کل اس کے انجام کی گواہ بنے گی، کیونکہ اللہ کے فیصلے انسانوں کے منصوبوں سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ اس وقت جنگل میں جو چیخ سنائی دی وہ صرف ایک معصوم کی فریاد نہ تھی، وہ ایک کہانی کا آغاز تھی، ایک ایسی کہانی جو آنے والے وقت میں تاریخ بنے گی۔ جنگل خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں ایک ماں کا دل دھڑک رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت جسے سب اماں کہہ کر پکارتے تھے، اس روز معمول کے مطابق لکڑیاں چننے نکلی تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور پرندے اپنے گھونسلوں کی رالے رہے تھے۔ اسی دوران اسے کسی معصوم کے رونے کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ اماں کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے اپنے کان تنے اور پھر درختوں کے بیچ ایک ننھی سی بچی کو دیکھا، کپکپاتی، ننگے پاؤں دھول میں لپٹی، اور چہرے پر وہ آنسو جن کا بوجھ کسی بچے کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ اماں کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ اس نے جھک کر بچی کو گود میں لیا، اپنے پرانے چادر میں لپیٹا اور آہستہ سے کہا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں میں ہونا۔ اس لمحے جیسے قدرت نے اس بوڑھی عورت کی گود میں ایک نئی زندگی رکھ دی۔ اس نے بچی کو سارا نام دیا۔ سارا اب اماں کی جھونپڑی میں رہنے لگی، وہی جھونپڑی جو بانس، مٹی اور محبت سے بنی تھی۔ مگر یہ جنگل عام نہیں تھا، یہاں کے جانور غیر معمولی طور پر سارا سے مانوس ہو گئے۔ بندر اسے دور کی بستیوں سے پرانی کتابیں لا کر دیتے جنہیں وہ شام کی روشنی میں پڑھتی۔ پرندے صبح سویرے اس کے لیے چہچہاہٹ میں خبریں سناتے۔ خرگوش، ہرن، لومڑیاں سب اس کے ساتھ کھیلتے، باتیں کرتے اور سیکھتے۔ سارا نے صرف حروف اور لفظوں کی پہچان نہیں سیکھی بلکہ فطرت سے جینے کا ہنر، خاموشی سے سننے کا فن اور دوسروں کی خدمت کی طاقت کو سمجھا۔ اماں نے اس کی تربیت ایسے کی جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ بچی کسی معمولی مقدر کی مالک نہیں۔
सारा को बचपन से तलवारबाजी सिखाई गई, शिकार करना, घोड़े की सवारी, जंगी हिकमत अमली, जड़ी बूटियों की पहचान और इंसानों के नफ्सियात पर भी उबूर दिया गया। इल्म के साथ साथ उसके अंदर रहम, सब्र और क़यादत की वो खासियत पनपने लगी जिसे फितरत खुद तराशती है। दूसरी जानिब महल में वक्त थम गया था। हर साल शहजादी नूर की पैदाइश का दिन आता और बादशाह सुल्तान अपनी बेटी के कमरे में एक चिराग जलाता। मलिका सकीना खामोशी से इस कमरे के दर ओ दीवार को देखती रहती, जैसे वहां आज भी किसी की हंसी गूंज रही हो। इन दोनों ने अपनी बेटी को खोया था, मगर उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। दुआओं में वही एक नाम था, नूर। साल गुजरते गए और सल्तनत पर उदासी का साया गहरा होता गया। फिर एक दिन महल में अचानक बेचैनी फैल गई। बादशाह की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले खफीफ सी कमजोरी, फिर बार बार बेहोशी, फिर बुखार जो उतरने का नाम नहीं लेता था। शाही हकीमों ने तमाम जड़ी बूटियां, दवाएं, मंत्र और तबीबों की किताबें आजमा लें, मगर सब बेअसर। तब एक बुजुर्ग हकीम ने आकर कहा, यह बीमारी आम नहीं है। किसी ने बादशाह को आहिस्ता आहिस्ता जहर देना शुरू किया है। ये सुनकर मलिका के पांव तले जमीन निकल गई। बादशाह पर हमला, महल के अंदर, मगर कौन, क्यों? इन सवालों से पहले इसे सिर्फ एक बात की फिक्र थी, बादशाह की जान बचाई जाए। जब तमाम तहकीकात हो चुकी तो एक नादिर इल्म रखने वाला तबीब यह बताता है कि सिर्फ एक मखसूस जंगली जड़ी बूटी जो खामोश पहाड़ों की सुनसान वादियों में उगती है ही इस जहर का तोड़ कर सकती है। मलिका ने आंखों में आंसू लिए ऐलान किया, जो कोई ये दवा लाकर बादशाह की जान बचाएगा, इसे इनाम से नवाजा जाएगा। ये ऐलान सल्तनत भर में फैल गया। हर दरबार, हर बाजार, हर गोशे तक बात पहुंची। मगर किस्मत ने जिसके दिल में आवाज जुगनी थी वो जंगल में थी, और वो सारा थी। जब मलिका सकीना ने ऐलान किया कि जो कोई शख्स वो नायाब जड़ी बूटी ला देगा जो बादशाह के जहर का तोड़ है, तो उसे सल्तनत की जानिब से इनाम दिया जाएगा, तो ये खबर जंगल के कोने कोने में गूंजी। परिंदे इसे फजाओं में ले गए और दरख्तों की सरसराहट में वो पैगाम छप गया। आखिरकार ये पैगाम सारा के कानों तक पहुंचा और उसका दिल बेचैन हो गया। वो जानती थी कि शायद ये वही लम्हा है जिसके लिए इसने जिंदगी भर तैयारी की थी। इमा ने सारा को रुखसत करते हुए एक पुरानी बांसुरी थमाई। वो बांसुरी इमा के दादा की थी और उसमें ऐसी मौसीकी थी जो दिलों को संभालती, खौफ को चीरती और वहशत में सुकून लाती। इमा ने धीरे से कहा, ये तुम्हारे दिल की ज़बान है सारा। जब तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुननी हो ये बांसुरी बजाना। सारा ने सफर का आगाज किया। इस सफर में इसके साथ इसका दोस्त कबूतर बेटो भी था। वो पहाड़ों के दामन, जंगल के तने और नदियों के शोर उसके हमरा हो गए। मगर रास्ता आसान ना था। पहली आजमाइश एक पुरस्रार गार थी, धुएं से भरा हुआ, इतना सिया के हाथ को हाथ ना सूझे। गार के दहाने पर एक बूढ़ा साया नमूदार हुआ और बोला, यहां से गुजरने के लिए तुम्हें अपने खौफ से नजरें मिलानी होंगी। सारा ने आंखें बंद की, दिल की धड़कन सुनी और कदम अंदर रख दिया। अब सारा ने दिल थाम कर बांसुरी बजाई। बांसुरी की धन से धुआं थमता गया और जब वो गार से निकली तो उसके चेहरे पर इत्मीनान की रोशनी थी। दूसरी आजमाइश एक जहरीले तालाब के किनारे थी। तालाब के वस्त में वो जड़ी बूटी पानी की सतह पर तीर रही थी और किनारे पर सांपों का हुजूम फुंकार रहा था। उनकी आंखों में चमक, जैसे वो अंदर झांक रहे हों। सारा को याद आया कि बांसुरी सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को भी सुकून पहुंचाती है। इसने एक नर्म धन छेड़ी, सांप धन पर झूमने लगे। सारा ने चुपचाप अपने कबूतर को इशारा किया। वो उड़कर निहायत एहतियात से जड़ी बूटी को ले आया। मगर सबसे कठिन आजमाइश अभी बाकी थी, इंसान का ज़मीर। वापसी के रास्ते में सारा ने देखा कि एक दरख्त की शाख टूटकर एक हिरन के बच्चे पर आ गिरी है, वही हिरन जो बचपन में इसका खेलने का साथी था। वो करा रहा था। सारा एक पिल के लिए रुक गई। एक तरफ हाथ में वो दवा थी जो एक बादशाह की जान बचा सकती थी, और दूसरी तरफ इसका बेबस दोस्त जिसकी जिंदगी लम्हों में टूट सकती थी। तब सारा ने वही किया जो एक शहजादी का दिल करता है, चाहे इसे अपनी हकीकत मालूम हो या ना हो। इसने जड़ी बूटी अपने साथ मौजूद कबूतर को दी, इसके सर पर हाथ फेरा और इसे महल का पता समझाया। फिर खुद दरख्त की शाख हटाकर हिरन के बच्चे को आजाद किया। वो जख्मी था मगर जिंदा। जब वो खुद महल पहुंची, सूरज गुरूब होने को था।
दरवाजे के बाहर लोगों का हुजूम था। महल की फिजा में सनसनी थी। खबर आ चुकी थी कि एक परिंदा दवा लेकर आया है और हकीमों ने दवा दे दी है। बादशाह की हालत में बेहतरी आ रही थी। मलिका सकीना की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं। इसी लम्हे सारा महल के दरवाजे पर पहुंची, गर्द से अटा लिबास, माथे पर पसीना और हाथों में बांसुरी। इसकी आमद पर सबकी निगाहें इस पर जा रुकीं। जब मलिका की निगाह सारा से मिली तो दिल की एक नेहा गहराई में कुछ धड़कने लगा, जैसे बरसों पुरानी कोई तस्वीर धुंध में से साफ हो रही हो। मलिका ने सारा को करीब बुलाया और नरमी से कहा, बेटी, अपना इनाम तो लेती जाओ। सारा के होंठों पर एक सादा सच्ची मुस्कुराहट उभरी। इसने बांसुरी को मुट्ठी में थामा और धीरे से कहा, अगर बादशाह सलामत ठीक हो जाए तो वही मेरा इनाम होगा। महल की फिजा में खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में जज्बात की एक गूंज थी। हर निगाह इस लड़की को देख रही थी जो न सिर्फ बहादुरी बल्कि रहम और कुर्बानी की मिसाल बन चुकी थी, और किसी को ये इल्म न था कि यही वो शहजादी है जिसके लिए बरसों से चिराग जलाए जा रहे थे। मलिका सकीना महल की छत पर खड़ी थी। आसमान के रंग बदलते जा रहे थे, मगर उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था। वो अजनबी लड़की कौन थी जिसकी बातों में, आंखों में और वजूद में एक ऐसी आशनाई थी जो बरसों से कहीं खो गई थी। इसकी पेशानी पर वही मासूमियत, लबों पर वही नर्म मुस्कुराहट जो नूर की तस्वीर में कैद थी। दिल ने गवाही दी, मगर अक्ल को सबूत चाहिए था। इसने अपने खास और वफादार जासूस अयाज को बुलाया और आहिस्ता लहजे में कहा, मालूम करो वो कौन है, कहां से आई है, किसकी बेटी है। अयाज कई दिन सफर करता रहा। वो इस घने जंगल में पहुंचा जहां सारा ने आंखें खोली थीं। वो झोंपड़ी तक पहुंचा, इमा से मिला। इसने आहिस्ता आहिस्ता सारी कहानी बयान की। फिर वो एक पुराने संदूक के पास गया जहां इमा ने वो कपड़े संभाल कर रखे थे जिनमें सारा इसके पास आई थी। उन कपड़ों के अंदर एक छोटा सा चमकता हुआ शाही निशान छुपा हुआ था, सुनहरी धागे से कड़ा हुआ सल्तनत का मखसूस निशान जो सिर्फ शहजादियों के लिए मखसूस होता था। अयाज ने जब वो निशान देखा तो एक लम्हे के लिए इसकी आंखें भी नम हो गईं। इसके कदम तेज हो गए और वो सबूत लिए महल की तरफ रवाना हुआ। मलिका सकीना ने जब वो निशान हाथ में लिया तो बरसों के सब्र, दुआ और इंतजार की तस्वीर उसके सामने आ गई। इसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई और वो एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर खुद जंगल की तरफ रवाना हो गई। मुहाफिजों के बगैर, दरबार की परवाह किए बगैर, सिर्फ एक माँ की तरह जो बरसों से अपनी बेटी को गिले लगाने को तरस गई हो। इमा की झोंपड़ी के सामने जब मलिका का रथ रुका, सारा बाहर आई। इसकी आंखों में हैरानी थी, मगर मलिका की आंखों में सिर्फ मोहब्बत थी। वो आगे बढ़ी और बगैर कुछ कहे सारा को अपने सीने से लगा लिया। लम्हों में बरसों का फासला खत्म हो गया। आसमान के बादल जैसे थम गए और जमीन की खामोशी ने गवाही दी, माँ और बेटी मिल चुके थे। सारा, जिसे इमा ने सारा कहा मगर कुदरत ने नूर बनाया था, अपनी शनाख्त को पा चुकी थी। महल वापस लाने की तैयारी हुई। अवाम ने रास्तों पर फूल बरसाए। बादशाह सुल्तान जो बिस्तर से उठ चुका था, इसने नूर को देखा तो एक पिल को खामोश रहा, फिर उसके हाथ कांपते हुए नूर के सर पर रखे और आंखों से 2 आंसू बह गए, शुक्र और खुशी के। मगर नूर के दिल में एक और बात थी, एक ऐसी सच्चाई जो अब रोशनी में लाना जरूरी थी। इसने मलिका से इजाजत ली और दरबार में वजीर करीम को तलब किया। सब लोग जमा हुए और नूर ने खुद तमाम सबूत सामने रखे, शाही निशान, अयाज की गवाही, इमा की गवाही और अपनी जिंदगी की वो कहानी जो सिर्फ वो जानती थी। करीम का चेहरा जर्द हो गया। इसने बहाने बनाए, मगर अब वक्त बहानों का नहीं, सच्चाई का था। नूर ने तलवार हाथ में ली, मगर उसकी आंखों में गुस्से की बजाय सुकून था। इसने कहा, मैं बदला नहीं चाहती, मैं इंसाफ चाहती हूं। जहीर का मुकदमा अवाम के सामने चला और इसे अपने जराइम की सजा मिली। इसे कैद कर दिया गया और सल्तनत पर सच्चाई की एक नई सुबह तुलू हुई। बादशाह ने ऐलान किया, नूर ही सल्तनत की वारिस है। इस दिन महल के दर ओ दीवार पर ऐसी रोशनी उतरी जो बरसों पहले खो गई थी, और पहली बार लोगों ने एक ऐसी रानी देखी जो तख्त से नहीं, किरदार से अजीम थी, जो जंगल की मिट्टी में पली मगर उसका ज़र्फ महल की बुलंद दीवारों से कहीं ऊंचा था। ये कहानी खत्म न हुई, बल्कि वो आगाज थी एक नई तारीख का, जहां इल्म, रहम, हिम्मत और इंसाफ साथ साथ चलते हैं। नूर की रोशनी सिर्फ महल के कमरों तक महदूद ना रही, वो दिलों में उतरने लगी
اور وہ بچی جو کبھی جنگل میں روتی تھی اب ایک ایسی آواز بن چکی تھی جو ہر مظلوم کو حوصلہ دیتی تھی۔ یہی قدرت کا انداز ہے، وہ جنہیں دنیا کھو چکی سمجھتی ہے، قدرت انہیں تاریخ کا چراغ بنا دیتی ہے۔